act of love, every tableau, every sitar says life is a precious secret. Dear beloved family, dear beloved brothers and sisters, children and youth, प्रिय प्यारे परिवार, प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों व युवाओं, I am Amardeep Pius Markey. मैं लूकस पीटर हूँ. Today is the 9th day of February. आज फरवरी का 9वां दिन है. The 6th ordinary Sunday of the year. वर्ष का छठा सामान्य परिवार. If we had not accepted this request of the Lord today, whatever is done on the new day of the month of Magha, the same is done in the court of the winds of Poa. During the entire very high spring season. यदि आज हमने प्रभु की यह विनती स्वीकार न की होती, तो माघ मास की 9वीं तिथि पर जो कुछ भी किया जाता है, वही पूरे वसंत ऋतु के दौरान शीतल पवन में किया जाता है. First Bible verse. बाइबल का पहला वचन, John chapter 15 verse 8. योहन का सुसमाचार 15 पद संख्या 8 में. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और यह प्रकट करो कि तुम मेरे चेले हो. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. गलातियों अध्याय 5 पद संख्या 22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं. Let's break down the meaning. तारांकन, this is to my Father's glory. This phrase highlights the purpose of bearing fruit. It's not about our own self-glorification, but about bringing honor and praise to God the Father. Our fruitfulness reflects well on Him. Tarankan, that you bear much fruit, in this context refers to the spiritual fruit produced in the lives of believers through the Holy Spirit. This can include things like love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. आइए इसका अर्थ समझें. तारांकन, यह मेरे पिता की महिमा के लिए है. ये वाक्यांश फल पैदा करने के उद्देश्य पर प्रकाश डालता है. ये हमारे स्वयं के गौरव के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर पिता को सम्मान और प्रशंसा लाने के बारे में है. हमारा फलदायी होना उनके बारे में अच्छा दर्शाता है. तारांकन कि तुम बहुत फल लाओ, इस संदर्भ में फल पवित्र आत्मा के माध्यम से विश्वासियों के जीवन में उत्पन्न आध्यात्मिक फल को संदर्भित करता है. इसमें प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता और आत्म संयम जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं. सेकेंड बाइबल वर्स. बाइबल का दूसरा वचन, 1 John chapter 4 verse 19. एक योहन पद संख्या 4 पद संख्या 19 में. We love because he first loved us.
हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया. This verse expresses a fundamental principle of Christianity. God's love is the source of our love. We are able to love God because He first loved us. यह आयत ईसाई धर्म के एक मूलभूत सिद्धांत को व्यक्त करती है. परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रेम का स्रोत है. हम परमेश्वर से प्रेम करने में सक्षम हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया. What does this verse mean? God's love was first. This verse reminds us that God loved us first, before we loved Him. This love is selfless and unconditional. इस आयत का क्या अर्थ है? तारांकन परमेश्वर का प्रेम पहला था. यह आयत हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, इससे पहले कि हमने उससे प्रेम किया. यह प्रेम निस्वार्थ और बिना शर्त है. Our love as a response. Our love as a response to God's love. We love Him because He first loved us. तारांकन हमारा प्रेम प्रतिक्रिया है. हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रेम की प्रतिक्रिया है. हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया. Love is a commandment. Jesus commanded us to love one another. This commandment is based on God's love. तारांकन प्रेम एक आज्ञा है. यीशु ने हमें एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा दी है. यह आज्ञा परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है. What is the significance of this verse? इस आयत का क्या महत्व है? Last Bible verse. अंतिम बाइबल वचन. Proverbs chapter 27 verse 19. नीतिवचन अध्याय 27 पद संख्या 19. As water reflects the face, so one's heart reflects the person. जिस प्रकार जल चेहरे को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार व्यक्ति का हृदय व्यक्ति को प्रतिबिंबित करता है. Meaning of this verse. This verse tells us an important thing about the nature of man and his mind. इस वचन का अर्थ. ये वचन हमें मनुष्य के स्वभाव और उसके मन की प्रकृति के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताता है. तारांकन. Just as the reflection of the face is found in the water, just as the face of a person is reflected when seen in calm water, in the same way. तारांकन. जैसे जल में मुख की परछाई मिलती है, जिस प्रकार शांत जल में देखने पर किसी व्यक्ति का चेहरा या मुख प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार. तारांकन. In the same way the heart of one man is found in the heart of another man. The heart or mind of a man also reflects the hearts and minds of others. तारांकन. वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है. मनुष्य का हृदय या मन भी दूसरों के हृदयों और मनों को प्रतिबिंबित करता है.